رائزنگ پاکستان کے گھونسلے سے ایک اور پنچھی جوڑ گیا تھا، اس کو ہم لے آئے ہیں واپس آپ کی فرمائش پہ. عبداللہ منصور جو کہ پاکستان کے ایک لیڈنگ آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر ڈیزائنر ہیں اور پچھلے 5 برس سے رائزنگ پاکستان کی ٹیم کا حصہ رہے، لیکن اس کے بعد اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا سنگاپور چلے گئے. آج کل پاکستان میں ہیں تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ گاہے گاہے آتے جاتے رہا کیجئے، میکے کو بھول نہیں جانا چاہیے. گڈ مارننگ، السلام علیکم عبداللہ. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ میکے میں خوش آمدید. بہت بہت شکریہ، اٹس گڈ ٹو بی بیک. اچھا جی، تو کیا سین ہے؟ پہلے تو بتائیں کہ سنگاپور میں زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بہت اچھی گزر رہی ہے. آپ کو ہم یاد آتے ہیں؟ بالکل یاد آتے ہیں. گھر کو تو کوئی نہیں بھول سکتا، سو ڈیفینیٹلی بہت سب کو مس کرتا ہوں. جی اوکے گریٹ. تو آج آپ ایسا کیا خاص ہمارے لیے لے کر آئے؟ جی، تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پچھلے 6 مہینے میں، پچھلے 1 سال میں اتنی زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، اور جو بھی کوئی پروفیشن ہو، ہر پروفیشن میں کہیں نہ کہیں پہ اس کی انٹیگریشن اب ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ذرا ایک آرکیٹیکچر اور انٹیریئر کے حوالے سے بھی اس کے بارے میں سیگمنٹ ہونا چاہیے کہ جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پروفیشن میں اس کا کیا کام ہے، پازیٹیوز ہیں، کچھ نیگیٹیوز ہیں، تو کس طریقے سے، تو تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے. یعنی ہماری نوکریاں تو جا رہی ہیں، وہ پتہ چلا کہ وہ ٹی وی اینکرز اور نیوز کاسٹرز بھی اے آئی پروڈیوسڈ ٹی وی اینکرز، تو توثیق حیدر کی چھٹی، فاطمہ کی چھٹی، تو آرکیٹیکٹس کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے؟ یہ والا ہم سوال تھوڑا سا آخر میں ڈسکس کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری تھوڑے عرصے تک بچت ہے. آپ لوگوں کی چھٹی شاید تھوڑی جلدی ہو جائے. تو اس کا مطلب ہم نے صحیح وقت پہ اپنا لڑکا بیاہ دیا ہے نا. تو ہمارے پاس کچھ ویژولز ہیں، تو تھوڑا سا ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گفتگو. جی بالکل ٹھیک ہے. کنٹرول روم بتائیں جی پہلا ویژول. سب سے پہلے میں نے کہا کہ یہاں سے ذرا سٹارٹ کریں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سا کاغذ کا رول ہے، اور لوگ اس کے اوپر اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی بھی ٹیبل کے اوپر تو پورا آ نہیں سکتا. تو لوگ جو ہے وہ لیٹ کے اس کے اوپر یہ مینول ڈرافٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی شہر ہے جو پلان ہو رہا ہے اور اس کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ کتنی پرانی تصویر ہے؟ یہ کوئی 1960s کی تصویر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کا سارا کام کرنے میں جو ہے وہ مہینے لگتے تھے. اور اسی طریقے سے گھروں کے بھی جو بھی نقشے بنتے تھے وہ سب کچھ تھا، وہ تھوڑے سے اس سے چھوٹے ہوتے تھے ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کہ اس کو بھی بنانے میں، ڈرائنگس کو تیار کرنے میں مہینے لگ جاتے تھے. لیکن جب ہم اگلی نیکسٹ ویژول کی طرف جائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو تھا نا وہ پھر ڈیز میں کنورٹ ہوئے، منتھس، اور آج کل جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اس طریقے کا کر رہے ہیں کہ 5 دن، 6 دن، 10 دن میں اس طرح سے ایک 3D ویو جو ہے وہ رینڈر ہو جاتا ہے. یہ اصل تصویر نہیں ہے، یہ اصل تصویر نہیں ہے، یہ ایک ریئلسٹک قسم کا 3D رینڈر ہے آف اے پروپوزڈ پروجیکٹ. یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے یہ ایک آرکیٹیکٹ نے بنایا 3D اس کے لیے، کہ کلائنٹ کے لیے ایسا بن کے ایسا لگے گا. جی. اور اب یہ بھی جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، کیونکہ اب جو دنوں کے بعد اب ہم سیکنڈز کی طرف آ گئے کہ چند سیکنڈز میں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے آپ وہ پرومپٹ ڈالتے ہیں اور وہ کمپیوٹر آپ کو جو ہے وہ چیز جنریٹ کر کے آپ کے سامنے لے آتا ہے. عبداللہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سیکنڈز میں بنا ہے؟ یہ سیکنڈز میں بنا ہے. اس میں ساری ڈیٹیلنگ آپ دیکھو، آسمان کی ڈیٹیلنگ، ایک چیز کی ڈیٹیلنگ ہے. بالکل. اور اگر آپ مجھے کہیں کہ جی مجھے یہ امیج بالکل بھی پسند نہیں آیا، مجھے یہ بلڈنگ جو ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں آئی، تو ود ان 1 سیکنڈ میں آپ کو 6 اور امیجز بالکل اس سے مختلف طرح کے اے آئی کی ہیلپ سے جنریٹ کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. ارے واہ. تو یہ جو سارا کا سارا ہے یہ اس کے اندر ہم پرومپٹس ڈالتے ہیں. مڈ جرنی ایک بہت پاپولر اے آئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ امیجز وغیرہ جنریٹ ہوتے ہیں، اور اس کا دیکھا دیکھی بہت سارے اور بھی اے آئیز ڈفرینٹ آ گئے. تو یہ سارے کے سارے امیجز جو ہیں وہ اس میں ہوئے ہوئے ہیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم سائنس فکشن موویز میں دیکھا کرتے تھے کہ جی 2050 میں دنیا ایسی ہوگی، وہ اب چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یعنی میٹرکس ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا. بالکل. تو اب آپ نے سیکنڈز کے اندر دیکھ لیا کہ جی مجھے یہ دائیں ہاتھ والی طرح کا جو گرین فیبرک ہے وہ چاہیے، یا جو بائیں عبداللہ پلیز مجھے ایسا گھر بنا دو. جی ضرور پلیز. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے جب انسان ڈیزائن کرتا ہے اور جو ہمیں یوزولی بلڈنگز اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، اس کا جو سارا کا سارا ایسپیکٹ ہے، اس طرح کا جو سارا کا سارا ڈیزائن ہے وہ بہت زیادہ فیوچرسٹک ہے. یہ فاطمہ کا گھر ہے. مجھے نا ایسے لگ رہا ہے میں کوئی کارٹونز کی وہ دیکھ رہی ہوں پکچرز. آپ کو نہیں ایسا لگ رہا؟ نہیں عبداللہ ہے کیا. اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ جی مجھے ایک ایسا اسٹرکچر ڈیزائن کر کے دیں جو آسمان سے اور سن سیٹ سے انسپائر ہوا ہو اور اس میں ایسے کلرز ہو. اچھا عبداللہ یہ سارا اے آئی ڈیزائن کر رہا ہے اس وقت؟ یہ سب اے آئی ڈیزائن کر رہے ہیں. آپ نے صرف اور صرف 3 یا 4 جملے لکھنے ہیں. جیسے لوگوں کی نوکری گئی بچے، ابھی ہم اس کی طرف آخر میں آتے ہیں. پیک اپ. اس طریقے سے نیچر کو کس طریقے سے انٹیگریٹ کرنا ہے. تو اگر ہمارا جو ہم اسے پرومپٹ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جی مجھے اس طرح کی چیز چاہیے، تو اس میں سارے کے سارے جو کالمز ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ درختوں سے انسپائر ہو کے
बना दिए और नेचर को अंदर की तरफ यार लेके आए। ये मेरे घर का जो लाउंज है ना वो ये होना चाहिए। जी फिर उन्होंने कहा कि जी मैं फर्दर उसके अंदर और चीज़ें ऐड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पिछले वाले इमेज की निस्बत ये वाला जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इनरिच हुआ हुआ है और ज़्यादा डिटेलिंग है इसके अंदर। अच्छा अब्दुल्ला ये बताएं कि ये जो पिछली 3-4 तस्वीर हमने देखी हैं बहुत खूबसूरत हैं और हम कह रहे हैं ऐसा मेरा घर हो ये वो, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये डिजाइनिंग तो कर दी, अब बात करें एग्जीक्यूशन की कि ये क्या एग्जीक्यूट भी हो सकते हैं? वो एआई आके एग्जीक्यूट तो नहीं करके देगा ना? अभी शायद नहीं, लेकिन अगले चंद सालों में डेफिनेटली इस तरह की भी कोई ना कोई चीज़ आ जाएगी। हमें आपने भी सुना होगा 3D प्रिंटर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। इनिशियली जो है वो पिछले चंद सालों से उसका जो है वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अभी करंटली उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थी जब आए, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉस्ट कम हो रही है क्योंकि जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। तो इनिशियली जो था वो छोटी छोटी चीज़ें उससे बिल्ड हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ अर्से पहले भी एक सेगमेंट किया था जब हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी, उस वक्त एआई का कोई ऐसा जिक्र नहीं था। तो उस वक्त हमने ये दिखाया था कि 3D के जो एक प्रिंटिंग मशीन है उसने पूरा का पूरा घर जो है वो 3D प्रिंट करके किया हुआ है और लोग उसके अंदर रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से शायद अभी हम कहें कि जी ये मटेरियल ये तो दरख्त सा है, ये कौन सा मटेरियल होगा, किस तरीके से होगा, बट यू नेवर नो अगले 10 सालों में 15 सालों में जो आपके 3D प्रिंटर्स हैं वो इस काबिल हो जाएं कि जो भी चीज़ एआई ने प्रोड्यूस की है वो आपको एग्जैक्टली उसी तरह की जो है वो मैन्युफैक्चर करके दे सके। इंटरेस्टिंग जी इंटरेस्टिंग। यानी बिल्कुल। मैं और फातिमा अपने अपना घर डिजाइन करवा के रख लें जी। ऐसे 4-5 साल से मैं अब्दुल्ला से कह रहा हूँ कि घर एक डिजाइन कर दो, इसने कहा लिफ्ट नहीं कोई, मैं बहुत महंगा हूँ भाई, आप तुम रखो अपनी महंगाई अपने पास, मैं एआई से मुफ्त हेल्प डिजाइन से। करा। नहीं तो अब जैसे अगर अब इन्होंने बनवाना है अपने घर का नक्शा या मैंने, तो हम खुद भी बैठ के बना सकते हैं। वो इतना इजी टू यूज़ है कि आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक हम पहले अपनी पिक्चर्स को ज़रा फिनिश करते हैं फिर ज़रा इसके बारे में आएंगे, इसको wrap up करेंगे। एक्साइटिंग आज सेगमेंट है कि हम अच्छा तो ये क्या है? बाहर की फैब्रिकेशन की बाहर किसे किस तरह का होगा वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इंटीरियर का क्या होगा? ठीक है। तो इंटीरियर में भी आप देख सकते हैं कि दिस इज आल्सो एन एआई जनरेटेड इमेज और इसमें आप छोटी से छोटी ये डिटेल्स असल नहीं है। नहीं असल नहीं है कि पीछे जो प्लांट रखा हुआ है वो और जो कारपेट पड़ा हुआ है, रग पड़ा हुआ है, वो वूल का बना हुआ है, ऊन का बना हुआ है, तो उसका भी जो मटेरियल है, जो उसका टेक्सचर है, वो आप आराम से उसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से। वाह तो जो लेवल ऑफ डिटेल्स है उसका जो है वो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप जितना ज्यादा तफसील से कंप्यूटर को बताएंगे कि आपको क्या चीज चाहिए। कंट्रोल रूम जरा तेज उतनी तेज चलेंगे जबरदस्त क्योंकि उसी वक्त कम तरीके है से हमारे आएगा। पास। अगली तस्वीर को जल्दी से आवेजा कर दीजिए। ठीक है, फिर ये एक थिएटर का एक इमेज है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारा जो है हम थिएटर के ऊपर मिसाल के तौर पे खड़े हुए और हमें ये सारे जो हैं जो जो लोग हमारी उस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं वो वाला विजुअल नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये एक मुनफरद सा और कितना ही जो है वो यूनिक सा जो है ये थिएटर का डिज़ाइन है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसी तरीके से मटेरियल की कोई कैद नहीं है, ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई कपड़ा लाइक मटेरियल है, उससे इसकी सारी की सारी फैब्रिकेशन हुई हुई है। ये बिल्डिंग है। ये वो बिल्डिंग देखे ना, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है और बीच में छोटा सा मुझे बंदा, तो बादल ही नजर आ रहे हैं। छोटा सा ये बंदा भी नीचे खड़ा हुआ दरवाजा है। है और उसमें बंदा ओए वो देखिए हाँ, ना। नीचे ओ यस यस यस, ये तो मैंने अब देखा है, दरवाजा और एक इंसान खड़ा है उसके अंदर। जी ब्यूटीफुल। और आई थिंक हमारे पास एक इमेज और है, ये इसमें भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लग रहा है कि शायद कोई गुब्बारा लाइक सी चीज़ है, जिस तरह वो हॉट एयर बलून मशरूम। होता है और उसको जो है ना वो फुला के उन्होंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर सा क्रिएट कर दिया है और उसके साथ जो है ना वो आपका वो ग्लास फसाड है और वो सब कुछ है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। लेकिन मजा तो तब आएगा कि ये एक्चुअल हो। जी आप चाहते हैं कि ये एक्चुअल हो? व्हाई नॉट? मुझे इसको देखे ना अजीब सा खौफ आ रहा है कि ये हम नहीं होंगे फिर। जी जी बिल्कुल। और यही मेरा जो कुछ 3-4 मैंने इसको रैप अप करने के लिए चीज़ों को पॉइंट्स अपने रखे थे कि एक तो जो लाइन है बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन, थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा डिफाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसने सारे की सारी चीज़ें हमने जो उससे कहा, हम कहें कि जी कपड़े की पूरी बिल्डिंग बना के दिखा दो, उसने हमें ये बना के दिखा दी, लेकिन जाहिर सी बात है उस कपड़े की बिल्डिंग को कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो वो जो है ना वहाँ पे जो है ना लाइन हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत है और डेफिनेटली वहाँ पे फिर ह्यूमन एलिमेंट जो है उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मैं उससे कहूँ कि मुझे तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ कैंटिलीवर करनी है, मैंने कोई छज्जा निकालना है और मैं कहूँ कि जी 30 फुट का मुझे तुम छज्जा निकाल के दे दो, लेकिन बगैर सपोर्ट के, बगैर कंप्यूटर तो मुझे करके दिखा देगा और मुझे पसंद भी आ गया, क्लाइंट को भी पसंद आया, लेकिन मुझे पता है कि स्ट्रक्चरली अभी वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो वो जो ह्यूमन एलिमेंट है उसके लिए कॉन्स्टेंटली आपको बार बार जो है ना वो उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और हो सकता है नियर फ्यूचर में शायद ये वाली चीज़ भी एलिमिनेट हो जाए, बट करंटली जो है वो उसको इस तरीके से नहीं है। नौकरियां जा रही हैं इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स फिलहाल नहीं जा रही, फिलहाल नहीं जा रही।
दूसरी चीज़ जो है वो उसमें यह है खातिर जमा रखी है कि जब आप फॉर एग्जांपल आप मुझसे घर बनवाने के लिए अगर आए हैं, किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, मैंने आपको आपकी सारी रिक्वायरमेंट सुन के मैंने आपको 3 ऑप्शंस दी। उन तीनों ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन लाजमी पसंद आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी चीज़ों का ख्याल रखा है जो आपने मुझे बताया। लेकिन जब आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे तो इसमें से तो आप 6000 चीज़ें निकाल सकते हैं। जब 6000 ऑप्शंस होंगी तो उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना आपके लिए एक बहुत इम्पॉसिबल किस्म का टास्क बन जाएगा। देखो ये अब्दुल्ला जो है ना एज एन आर्किटेक्ट अपना और एआई के मुकाबले में अपने आप को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें हम आर्किटेक्ट से काम करवाएं, एआई पे ना जाए, फिर आपकी चॉइस बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये है कि आप पहले शुरू में होता था कि जो मेरे क्लाइंट्स थे वो मुझे 600 तस्वीरें जो ना इंटरनेट से मेरे साथ शेयर करते थे, हमें ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। अब वो ये रियलाइज़ नहीं करते थे कि छत उन्हें एक तस्वीर में से पसंद आ रही है, फर्श उन्हें किसी दूसरी तस्वीर में से पसंद आ रहा है, सोफ़ा उन्हें किसी तीसरी तस्वीर में से पसंद आ रहा है। तो अब इसका फ़ायदा ये है कि वो सारे का सारे प्रॉम्प्ट्स दे के और वो जो भी चीज़ उनको चाहिए वो एक इमेज में जो है ना वो अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पता लग जाता है कि अगर हम इसको फाइनली कर लें तो ये ऐसा लगेगा। बिल्कुल ऐसा। लेकिन स्टिल उसको इकट्ठा करने के लिए भी अब्दुल्ला चाहिए होगा। बिल्कुल डेफिनेटली चाहिए होगा। तो वो थोड़ा सा अपना होमवर्क कर सकते हैं, बट ये कि डेफिनेटली उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए या उसको फिक्शन से रियलिटी की तरफ लेके जाने के लिए आपको ह्यूमन की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और फिर ये चीज़ के ये जो चीज़ें हैं ये मुझे पिक्चर में देख के इतनी प्रैक्टिकल नहीं लग रही जी। मतलब वो मुझे वक्ती तौर पे उनको शुरू में के जो इमेजेस हैं मुझे देख के मजा आ रहा था, लेकिन एट द एंड मुझे वाकई में उनको देख के वो अच्छे नहीं लग रहे, डर लग रहा था और मुझे समाव ऐसे लग रहा था ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इंसान में और मशीन में फ़र्क रहना चाहिए। हाँ। लेकिन फातिमा इसमें ये भी चीज़ है कि जिस तरह अभी हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें बहुत ही मुख्तलिफ सी लगती हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं है। लेकिन आई थिंक कोई एक बिल्डिंग इस तरह की बन गई, वो लोगों को पसंद आ गई, तो फिर हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी इस तरह की बिल्डिंग्स हो गई, तो हमें फिर यही नॉर्म रहना शुरू होगा। और अगर आखिर में मेरे ख्याल से हम दूसरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो आखिर में मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए भी और जितने सारे के सारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी, कि जितनी भी ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, इसका सोशल मीडिया है, डिफरेंट ऐप्स हैं, गेम्स की हम बात कर रहे थे वो हैं, तो हर चीज़ के पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं, नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। तो बाज़ दफ़ा मैं ये सोचता हूँ और थोड़ा सा मैं इस बात से डरता भी हूँ कि AI की दुनिया में जाते जाते कहीं हम इस जगह पे ना पहुँच जाएँ कि हमें ये भी हो कि अब AI को छोड़ के 2+2 अपने दिमाग से सोच के बताएं कि इसका जवाब क्या आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये बड़े खतरे वाला मोमेंट होगा। तो अगर हम पॉजिटिव्स लें तो पॉजिटिव बहुत सारे हैं, लेकिन नेगेटिव्स लें तो वो भी हैं, तो हमें थोड़ा सा केयरफुली इस सड़क के ऊपर चलना है। ये शायद तो इस सड़क पे हम जैसे मुसाफिर नहीं होंगे, लेकिन आज से 100 बरस के बाद यही तायुन होगा कि इंसान फिक्री तौर पर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के सफ़र में कहाँ पे और टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रियलाइजेशन के सफ़र में कहाँ जाके खड़ा हुआ है। हम तो शायद इस हम में से कोई भी, जितने भी नाजरीन हैं, जितने हम शायद इसको राय और उस पर नहीं होंगे, हम जा चुके होंगे, लेकिन हमारी तीसरी चौथी नस्ल जो है उस बात को एक्सपीरियंस करेगी, जो कि अभी सोच के तो बहुत खौफ आता है जी। लेकिन लेट्स सी लेकिन हम एक अच्छे दौर में, इसका मतलब है हम अच्छे वाले दौर। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिए। हम बढ़ेंगे थोड़े से सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। फातिमा, वक्त बहुत कम है, जल्दी चलेंगे और देखेंगे किसने कहाँ से याद किया। जी, अगर हम तस्वीरों की तरफ चलें तो हमें अलीना रियाज ने सरगोदा से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी, सरगोदा वालों की एंट्री होगी। अरे वाह भाई, ये भी कुछ AI लग रहा है भाई। ये अब्दुल्ला, ये मुझे AI जनरेटेड इमेज नहीं, ये असल इमेज है, इस पर कुछ थोड़े से फिल्टर्स लगे हुए हैं। कुछ नहीं, काफी कुछ। भाई वेरी गुड। सरगोदा की देखें कितनी खूबसूरत नुमाइंदगी की है इन्होंने अपनी तस्वीर के जरिए। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस स्काई, ऑरेंज एंड ब्लू का बहुत अच्छा फील है। अच्छा जी, मिशाल इकबाल ने हमें हरीपुर हजारा से तस्वीरें भेजी है, आइए देखते हैं। जी, हरीपुर हजारा, ओए होए होए, फिल्टरों की भरमार। फिल्टरों के डब्बे डाल दिए हैं इसके ऊपर। लेकिन ग्रीन के कलर्स आप देखें, डार्क ग्रीन से लेके लाइट ग्रीन तक आपको इतनी सारी वेरिएशंस नजर आ रही हैं। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल, ये भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत। वाह, देखो फातिमा, तरबूज कितने अच्छे। ये जामुन है, जामुन। अच्छा, जामुन है, चलो शुक्र है। पहली दफा फातिमा ने कोई फल जो है ना वो, ये आम है, आम। वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तस्वीर थी। अच्छा जी, साकिब अली ने हमें अटक से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, साकिब ने, अरे वाह भाई वाह, देखो जी, डैम का पानी है ना, गदला पानी, बारिशें याद आ रही हैं, मॉनसून याद आ रहा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। जी, अगली तस्वीर कहाँ से आई है? मोहम्मद अरबाब ने हमें खुंडा अटक से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, अरबाब ने प्यारे प्यारे 2 फ्रेंड्स भेजे हैं, 3 है बल्कि। फ्रेंड्स। ओके, 3 फ्रेंड्स।
इनके नाम भी पता होने चाहिए। पिंकू है जी, इनके नाम भी बताने चाहिए। हाँ, टिंकू मिंकू, मैंने खुद जब कोई नाम नहीं पता था मैं खुद ही रख देता हूँ, टिंकू मिंकू एंड पिंकू। ये पिंकू है, चिंकू रख दें, ये टिंकू है, और ये भी टिंकू ही है। Alright. अच्छा जी, एमन सतार ने हमें सादिकाबाद से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, सादिकाबाद वालों के पेंटिंग्स आ गई हैं जी। वाह, लो भाई अब्दुल्ला भाई आप बैठे हैं, जरा आप तबसरा करें इस पे। जो सारे के सारे हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वो इतने खूबसूरत हैं, तो वो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ है, झील में जो है वो किश्ती जा रही है, जबरदस्त। वाह जी वाह, वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छी पेंटिंग है ये आपकी, प्यारी है। वेरी नाइस। 10 में से 11 नंबर, मुझे तो बहुत पसंद आई, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, अभी हैं, हाँ। जी अभी है। ओहो, ये उदास सा एक पंछी बैठा हुआ है, ये राइजिंग पाकिस्तान से उड़ गया था और इसको अच्छा जी, मोहम्मद माज आमिर ने हमें वाकई से तस्वीरें भेजी हैं और तौसीक के 7th क्लास के जो हैं स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें पेंटिंग भेजी है रिसाइकल पेपर से, जो न्यूज़पेपर से उन्होंने बनाई है। देखते हैं। ओके, अरे ये रिसाइकल पेपर पे, ये न्यूज़पेपर है भाई। अच्छा उसको उन्होंने पेंट किया है भाई, माज वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल जनाब, हमें अच्छा रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल आर्ट क्रिएट करना चाहिए। जबरदस्त माज, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब मैसेजेस की तरफ चलते हैं। हमें अहमद महमूद ने मुल्तान से मैसेज किया है, सर आज़ादी का महीना, अगस्त का महीना मुबारक हो। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि 1 मिली नगमों का सेगमेंट भी ज़रूर शामिल करें, मेरा पैगाम ज़रूर शामिल कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिली नगमे आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता गाहे गाहे हम राइजिंग पाकिस्तान में शामिल करेंगे। और बिल्कुल अगस्त का महीना शुरू हो गया है और जश्न आज़ादी की तकरीबात मुल्क भर में आपको गाड़ियों पे झंडे नजर आएंगे, लेकिन वन व्हीलिंग नहीं करनी, मोटर बाइक शौक के नहीं चलाना, अपनी जान की और अपने जिस्म की हिफाजत करनी। बिल्कुल जी। अच्छा जी, मेह खालिद ने हमें मरी से मैसेज किया है और उनका मैसेज तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप सब ने नोट किया होगा कि पहले इनके ये जो मेरे साथ बैठे हैं, इनके बाल ब्लू थे। जो मेरे साथ चीज पड़ी हुई है। नहीं, जो मेरे साथ बैठे, इनके पहले बाल जो हैं, हम 3 महीने से ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक ब्लू देख रहे थे। 3 साल से 3 साल से हम इलेक्ट्रिक ब्लू देख रहे थे और अब वो ग्रीन हो गए। ग्रीन आपने क्यों कराए? ग्रीन इसलिए कराएं कि अगस्त का महीना आ गया तो मैंने कहा जनाब सेलिब्रेशन हम अपने अंदाज में करें। और बिल्कुल ये खैर अभी तो लॉन्ग शॉट है, बल्कि लॉन्ग का भी बहुत लॉन्ग शॉट है ये। जी नहीं, ये प्रोमिनेंट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल जी। सही, अगस्त के सेलिब्रेशंस है। अच्छा, अब इसी से के सिलसिले में मैसेज है, इसलिए मैंने ये जो है ना आपसे बात की है। हम आपके वो नाजरीन हैं जो इस सेट पर मौजूद हर तब्दीली को गौर से देखते हैं। आप भी सेट हैं, पता है। और वो ये है कि सोफे का कलर और तौसीक हैदर का हेयर कलर वाह वाह खूबसूरत लग रहे हैं। ये बताएं अगला कलर जब चेंज करेंगे तो वो कौन सा होगा? ओके भाई, देखिए नहीं, ये तो आप बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रिक ब्लू से इलेक्ट्रिक ग्रीन हुआ है, तो अभी अगस्त के महीने के बाद कौन सा कलर होना चाहिए? तो ये मेरा ख्याल है मशवरा, अब्दुल्ला आपका क्या मशवरा है? कौन सा? व्यूअर्स से मशवरा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका हल्का सा, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से थोड़ा सा रेड की तरफ या ऑरेंज की तरफ जाएं जी। अच्छा, वो मुकेश कंट्रोल रूम से कह रहे हैं इतने खुश मत हो, आपके बालों का नहीं पूछ रहे, सोफे का रंग पूछ रहे हैं। तुम बताओ फातिमा, बालों का रंग है सोफे का रंग? नहीं, बालों का ही होगा, बालों का ही होगा। आप बताइए जी कौन सा कलर होना चाहिए? जी, इसके बाद हमें बिलाल ने हाफजाबाद से मैसेज किया है, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की मिसाल कहीं नहीं मिलती। हमारी ये दुआ है कि दोनों मुल्कों की दोस्ती रहती दुनिया तक कायम रहे। हमारा पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहे। जमाल शाह एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, हमारी दुआ है कि उनकी ये फिल्म बहुत कामयाब हो। जी हाँ बिल्कुल, कल जमाल शाह और आमना शाह और असलम मुगल को हमने फीचर किया और ये पाक चाइना दोस्ती की एक जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ जो फिल्म रिलीज़ हो रही है आने वाले दिनों में, उसको हमने फीचर किया। आने वाले 1-2 दिन में भी हम इसका एक नया एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे और बड़ी मज़ेदार फिल्म है। जब उसकी सारी डिटेल्स हम साथ साथ, पाकिस्तान टेलीविज़न PTV इसका मीडिया पार्टनर है, हम साथ साथ इसकी गाहे गाहे तफसीलात आने वाले शोज़ में आपको देते रहेंगे। जी, उसके बाद हमें मरियम जाहिद ने कोटला अरब अली खान से मैसेज किया है, मुझे ये शो बहुत पसंद है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि शो में ब्रेक ना लिया करें, बस ऐसे ही प्रोग्राम को चलने दिया करें। मतलब आप चाहती हैं कि हमें कोई तनख्वाह शनख्वाह, ये इतनी बड़ी बिजली और कैमरे और हमारा क्रू, मतलब क्यों हमारी रोजी रोटी के पीछे पड़ गई हैं? ब्रेक्स होती हैं, कमर्शियल्स चलते हैं तो पैसे आते हैं, तो सारा निज़ाम चलता है ना, तो ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उस ब्रेक के अंदर आपको पता है हम क्या कर रहे होते हैं। किसी दिन वैसे ना ब्रेक पे जाएं और ब्रेक के दौरान इधर क्या हो रहा था वो भी आपको हम लाइव दिखाएं, यानी ब्रेक पे कट ना करें,
आपको पता लगे कि काशिफ उठाओ अपने जिम के सामान और अब्दुल्ला को लेके आओ और उस्मान अब्दुल्ला की तस्वीरें लाइन अप होगी नहीं हुई, वो जो यहाँ पे एक पैनिक मच जाता है, उस 2 मिनट के अंदर अंदर हम पूरा एक सेगमेंट चेंज करते हैं एक लाइव शो में, वो भी किसी दिन इनको दिखाना चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा जी, मुबशर ने हमें पिंडी भटिया से मैसेज किया और वो कहते हैं शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान, हमारा मोस्ट वांटेड मुंडा फिर से राइजिंग पाकिस्तान की खूबसूरत रंगों में शामिल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आमना साहिबा का, आपने हम सब की रिक्वेस्ट राइजिंग पाकिस्तान की टीम से पूरी करवा ली। काशिफ साहब, आप इस प्रोग्राम को छोड़ के अब कहीं मत जाइएगा। जी बिल्कुल, काशिफ के हवाले से एक और भी मैसेज आया है। अलिशबा ने कबीर वाला से कहा है काशिफ शहजाद की वही एनर्जी आज भी नजर आई जो पिछले कई सालों से हम राइजिंग पाकिस्तान में देखते चले आ रहे हैं। काशिफ शहजाद को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपका वर्कआउट देख के 2 साल पहले आपके सेगमेंट को देख के और अपना वर्कआउट शुरू किया था, घर में ही शुरू किया था, और अब मेरे जिस्म में, मेरी बॉडी में जो ओवरवेट था उसमें एक वाज़े तब्दीली महसूस होती है। सब लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छी लगती हो। और तौसीक भाई, अब आप इस पंछी को उड़ने मत दीजिएगा, क्योंकि काशिफ भाई की बताई हुई ट्रिक्स और टिप्स से पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोग मुस्तफीद होते रहे। बिल्कुल आपने ठीक कहा अलिशबा, और हमारी अब कोशिश यही होगी कि गाहे गाहे काशिफ को हम प्रोग्राम में शामिल करें। यास्मीन अहमद ने चिश्तिया से हमें कहा है कि अब्दुल्ला और काशिफ दोनों राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का वो हिस्सा है जिनके बगैर घर नामुकम्मल सा महसूस होता है। हम अब्दुल्ला भाई को फिर से देखकर खुशामदीद कहेंगे, बहुत अच्छा लगा। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि अब घर में भी आर्टिफिशियल अंदाज में डिज़ाइन हो रहे हैं, खासा हैरान कुन है। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई अब्दुल्ला का सेगमेंट देख के। अब देखना सोचना ये होगा कि टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन सी फील्ड है जो इससे बख्शी गई है, यानी टेक्नोलॉजी किस फील्ड में नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, 15 मिनट रह गए शो खत्म होने में। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और डिजिटल दुनिया का करिश्मा यानी गेम डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे हजारों लाख रुपए पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां कमा रहे हैं। आज इस हवाले से हम नबील और राफे को लेके आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आपको गेम डेवलपमेंट की कहानी सुनाएंगे राइजिंग पाकिस्तान में, रहिए हमारे साथ।